خبردار ہوشیار، مین ہال، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر تنصیبات کو نہ چھیڑیں، نقصان پہنچانے پر قید اور جرمانے کی سزائیں ہوں گی۔ تنصیبات کے چوری پر 1 سے 3 سال قید، 2 لاکھ سے 30 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ حکومت پنجاب نے پروٹیکشن آرڈیننس کا منظوری کے بعد اطلاق کر دیا، ایل ڈی اے واسا سمیت ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی تنصیبات کو تحفظ ملے گا۔ مین ہول، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر تنصیبات کو نقصان پہنچانے والے قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانے پر قید کی سزا اور بھاری جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ تنصیبات کی چوری پر 1 سے 3 سال قید، 2 لاکھ سے 30 لاکھ تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ پنجاب پبلک یوٹیلیٹیز انفراسٹرکچر پروٹیکشن آرڈیننس 2026 منظوری کے بعد اطلاق کر دیا گیا۔ ایل ڈی اے واسا سمیت ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی تنصیبات کو تحفظ ملے گا۔ بغیر اجازت تنصیبات اتارنے یا خرید و فروخت پر 1 سے 3 سال تک قید ہوگی۔ بغیر اجازت تنصیبات اتارنے یا خرید و فروخت پر 5 لاکھ سے 30 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ تنصیبات کو نقصان پہنچانے پر 3 ماہ سے 1 سال تک قید، 50,000 سے 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ تنصیبات کی خرید و فروخت پر ملوث اسکریپ ڈیلر اور ری رولنگ پلانٹس کے لیے بھی سخت سزائیں ہوں گی۔ 3 سال تک قید، 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا۔ جرم دہرانے پر قید 3 سے 6 سال، جرمانہ 3 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہوگا۔ جانی نقصان کا باعث بننے کی صورت میں پاکستان پینل کوڈ کے تحت قوانین کا اطلاق ہوگا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کی خصوصی ٹیم نے قانونی فریم ورک ترتیب دے دیا۔ پنجاب میں بلدیاتی نظام کی اصل نو تشکیل، لوکل گورنمنٹس اور صوبائی اداروں کے کردار پر مزید سفارشات پیش۔ پنجاب حکومت کے سامنے بلدیاتی نظام کے 3 آپشنز رکھ دیے گئے۔ مکمل اختیارات لوکل گورنمنٹس کو دینے، صوبے میں صوبائی کنٹرول یا مشترکہ نظام کی تجاویز پیش کی گئی۔ بلدیاتی اداروں کی حد بندیوں کے رولز کی بھی منظوری دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن اب حد بندی کا کام کرے گا۔ محکمہ بلدیات نے الیکشن رولز پنجاب کابینہ کو ارسال کر دیے۔ پنجاب میں بلدیاتی نظام کی اثر نو تشکیل، لوکل گورنمنٹس اور صوبائی اداروں کے کردار پر مزید سفارشات پیش کر دی گئی۔ پنجاب حکومت کو بلدیاتی نظام کے 3 مختلف آپشنز پیش کیے گئے ہیں۔ مکمل اختیارات لوکل گورنمنٹس کو منتقل کر دیں، پورے صوبے میں صوبائی کنٹرول کے تحت نظام چلانے، لوکل گورنمنٹس اور صوبائی اداروں پر مشتمل مشترکہ نظام شامل ہے۔ پر درست ہے، تاہم لوکل گورنمنٹس کی انتظامی اور تکنیکی صلاحیت ایک بڑی رکاوٹ قرار دی جا رہی ہے۔ اسی طرح میونسپل سروسز کو مکمل طور پر صوبائی سطح پر چلانے کی تجویز پر آئینی اور عدالتی اعتراضات بھی حکومت کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا جھکاؤ مشترکہ نظام کی جانب ہے، جس کے تحت بڑے شہروں میں صوبائی ادارے، چھوٹے شہروں میں لوکل گورنمنٹس کو ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ پنجاب بلڈنگ ریگولیشنز 2026 کا مسودہ تیار، شہروں کی بے ہنگم تعمیرات روکنے کے لیے سخت فیصلے ہوں گے۔ نئی حدیں مقرر کی جائیں گی۔ گھر، دکان، سکول، اسپتال سب کے لیے الگ اصول طے کر لیے گئے۔ بجلی کی لٹکتی تاریں اور باہر لگے اے سی ختم کیے جائیں گے۔ شہروں میں اشتہارات کا جنگل ختم کیا جائے گا۔ پینا فلیکس اور کپڑے کے بینرز پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ پنجاب بلڈنگ ریگولیشنز 2026 کا مسودہ تیار کر لیا گیا۔ شہروں کی بے ہنگم تعمیرات روکنے کے لیے سخت فیصلے ہوں گے۔ شہر کہاں تک پھیلیں گے، نئی حدیں مقرر کی جائیں گی۔ گھر، دکان، اسکول، ہسپتال سب کے لیے الگ اصول طے کیے گئے ہیں۔ جلد بلڈنگ ریگولیشن کا مسودہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ مجوزہ ریگولیشنز کے مطابق صوبے میں شہروں کے پھیلاؤ کی نئی حدیں مقرر کی جائیں گی۔ گھروں، دکانوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کے لیے الگ الگ تعمیراتی اصول طے کیے گئے ہیں۔ اہم سڑکوں اور تجارتی بازاروں میں یکساں اور خوبصورت فرنٹ لازمی قرار دینے کی تجویز ہے۔ بجلی کی لٹکتی تاروں اور عمارتوں کے باہر نصب ایئر کنڈیشنرز کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا۔ شہری حسن بہتر بنانے کے لیے شہروں میں پینا فلیکس، کپڑے کے بینرز اور بے جا اشتہارات پر پابندی لگانے کی سفارش کی گئی ہے۔ ہر دکان کو محدود اور معیاری بورڈ کی اجازت ہوگی۔ عمارت کے فرنٹ کے 20% سے زائد حصے پر اشتہارات لگانا ممنوع ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، پنجاب میں مفت میت منتقلی سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سروس کی منظوری دے دی۔ میت کو اسپتال سے گھر پہنچانے کی مفت سہولت ملے گی۔ میت کو دوسرے شہر لے جانے کی سہولت بھی مفت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، بڑے سرکاری اسپتالوں اور ہر تحصیل میں سرکاری وہیکل سروس شروع کرنے کے لیے پلان طلب، پرائیویٹ ایمبولینس سروس کو بھی ریگولرائز کرنے پر اتفاق۔
पंजाब में पहली मर्तबा मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने की मुफ्त सहूलत मिलेगी। मरियम नवाज ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। वजीर आला पंजाब ने बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम से कम एक वैन मुयस्सर होगी। मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तिफाक किया गया। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज के रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने ब्रीफिंग दी। महंगाई का जिन रमज़ान बाज़ारों में भी पहुंच गया। रमज़ान बाज़ारों में चिकन 15 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। घी और ऑयल की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क। ख़वातीन सारफीन ने खजूरों का मायार बेहतर करने का मुतालिबा कर दिया। चाइना स्कीम्स में दीगर रमजान बाजारों में चिकन गोश्त 15 रुपए इजाफे से 431 से बढ़कर 446 रुपए फी किलोग्राम हो गया। चाइना स्कीम रमजान बाजार और हरबंसपुरा रमजान बाजार में घी और ऑयल की कीमतों में वाज़ेह फर्क नजर आया। चाइना स्कीम रमजान बाजार में दर्जा अव्वल घी ओपन मार्केट से 20 रुपए सस्ता 570 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया गया। हरबंसपुरा रमजान बाजार में 590 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। मैंने चीनी भी ली है और 2 तोड़े मैंने आटे के भी लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से मिल गए हैं। मैं तो आज फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। आसानी है हर काम में, वैसे तो बस सिर्फ चीनी ली है और हमने आटा लिया। महकमा खुराक के मुताबिक रमजान बाजारों में 10 किलोग्राम आटा पैक 850 जबकि ओपन मार्केट में 950 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अजमान चौधरी ने आटे के म्यार और फरोख्त का जायजा लेने के लिए चाइना स्कीम रमजान बाजार का दौरा किया। कहा, गुज़श्ता रोज रमजान बाजारों में 10 किलोग्राम के 13,000 थैले फराहम किए गए। आटे के हवाले से जो महकमा खुराक है, हमारा विजन ये है कि आटा या रोटी ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी रियासत का उसके शहरी के साथ पहला तारुफ होती है। सहूलत बाज़ार में हम इस वक्त खड़े हुए हैं जहाँ पे 60 रुपए का फ़र्क है आटे का मार्केट के साथ, और यहाँ पे आपको कोई लाइन कतन नज़र नहीं आ रही। विजन है सीएम पंजाब का, इसको हमने इंश्योर किया है और इंशाल्लाह आपने देखा है कि रिजल्ट्स उसके आपके सामने। शहरियों ने रमजान बाजार में पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात को सराहा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मुबारक महीने में महंगाई का जुम्मा बाजार बरकरार है। गिरां फरोश माफिया की चांदी दोनों हाथों से लूट मार। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और लीमू महंगे दामों फरोख्त होने लगे। अनार 900, अमरूद 150 रुपए किलो जबकि मौसमी 250 रुपए दर्जन बिकने लगे। जिले इंतजामिया की तवज्जो रमजान ने गहबान बाजारों पर। ओपन मार्केट में गिरा फरोशों का राज। फल, सब्जियां, गोश्त, दूध सरकारी निर्खनामे से जायद पर फरोख्त हो रहे हैं। बाजारों में सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं हैं। आलू का सरकारी रेट 18 रुपए, बाजार में 40 रुपए किलो। प्याज का सरकारी रेट 52 रुपए, ओपन मार्केट में 60 से 80 रुपए किलो। टमाटर देसी सरकारी रेट 65 रुपए, बाजार में 130 रुपए किलो। लहसुन देसी का सरकारी रेट 210 रुपए, बाजार में 250 रुपए किलो बेचा जा रहा है। अदरक चाइना सरकारी रेट 285 रुपए, ओपन मार्केट में 400 रुपए किलो। मटर का सरकारी रेट 38 रुपए, मार्केट में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अनार का सरकारी रेट 772 रुपए, बाजार में 900 रुपए किलो। अमरूद का सरकारी रेट 138 रुपए, ओपन मार्केट में 150 रुपए किलो। मौसमी का सरकारी रेट 172 रुपए, बाजार में 250 रुपए दर्जन। किन्नू का सरकारी रेट 209 रुपए, मार्केट में 350 रुपए दर्जन। सेब सफेद सरकारी रेट 230 रुपए, बाजार में 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से अशियाई जरूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाने का मुतालिबा किया है। सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे की बंदिश का मकसद आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, ये कहना है तर्जुमान का। धुंध ड्राइविंग के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मज़ीद क्या कहा जा रहा है जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार बताएगा। जी, अगरचे लाहौर और इसके गिरदो नवाह में मौसम काफी तब्दील हो चुका है, लेकिन धुंध का सिलसिला चंद रोज कबल जो शुरू हुआ था वो बदस्तूर जारी है। इस वक्त लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया।
मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि चूंकि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है, इसलिए हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मोटरवे को बंद किया गया है। जैसे ही धुंध में कमी वाक़ होगी, मोटरवे को दोबारा से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी गुजारिश की है कि वो कोशिश करें दिन के औकात में सफ़र करें। अगर रात के वक्त सफ़र करना मजबूरी हो और मोटरवे बंद मिले तो मुतबादिल रास्तों पर मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें और फोक लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार खान अपडेट करने के लिए। लेस्को में एलटी स्मार्ट मीटर्स की किल्लत पैदा हो गई। कमर्शियल सनती सार्फिन के लिए मीटर्स की तब्दीली का काम रुक गया है। मीटर्स की अदम दस्तियाबी की वजह से सार्फिन को कनेक्शन नहीं दिए जा सके। जले और ख़राब मीटर्स को तब्दील करने के बजाय रीडिंग बैकअप मीटर्स पर मुंतकिल, लेस्को ने दीगर मटीरियल का इजरा करना शुरू कर दिया। लेस्को में बड़े कमर्शियल इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए एलटी स्मार्ट मीटर्स की किल्लत पैदा हो गई। न्यू कनेक्शंस के साथ जलने और खराब होने वाले मीटर्स की तब्दीली का काम रोक दिया गया। सार्फिन ने LT2 OU मीटर्स के लिए डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं। लेस्को ने मीटर्स के अलावा दीगर मटीरियल का इजरा करना शुरू कर दिया, ताहम मीटर्स की अदम दस्तियाबी की वजह से सार्फिन को कनेक्शन नहीं दिए जा सके। इसी तरह जलने और खराब होने वाले मीटर्स को तब्दील करने के बजाय रीडिंग बैकअप मीटर्स पर मुंतकिल कर दी गई। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने MNT की रिपोर्ट्स की रोशनी में मीटर्स को तब्दील करना होता है, ताहम बहरान की वजह से मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स में ई मार्किंग सिस्टम लागू कर दिया गया। रवां साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर के पेपर की ऑनलाइन मार्किंग की जाएगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से स्कूलों में असातिज़ा के लिए गाउन पहनकर पढ़ाने की पाबंदी लगाई गई है। पंजाब समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स में ई मार्किंग सिस्टम लागू कर दिया गया। रवां साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर के पेपर की ऑनलाइन मार्किंग की जाएगी। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तमाम तालीमी बोर्ड्स को ई मार्किंग पर अमल दरामद का पाबंद कर दिया। IBCC के मुताबिक ई मार्किंग के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर तमाम तालीमी बोर्ड्स को मुफ्त फराहम कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्कूलों में असातिज़ा के लिए गाउन पहनकर पढ़ाने की पाबंदी लगाई गई। दुकानदारों ने गाउन की कीमत दुगना कर दी। बढ़ती महंगाई से असातिज़ा परेशान हो गए। 1000 रुपए वाला गाउन 2000 रुपए तक फरोख्त होने लगा। सदर पंजाब टीचर्स यूनियन काशिफ शहजाद ने हुकूमत से गाउन फराहम करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि गाउन की पाबंदी को आइंदा तालीमी साल तक मौखर किया जाए। मार्केट में गाउन की अदम दस्तियाबी के बायस दुकानदार मनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं, जिससे असातिज़ा की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। दूसरी जानिब स्कूल टीचिंग इंटर्न्स की भर्तियों के अहकाम जारी कर दिए गए। मुंतखब STIs उम्मीदवारों को 24 फरवरी से हायरिंग ऑर्डर्स मिलेंगे। STIs इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कॉन्ट्रैक्ट 31 मई 2026 तक जारी रहेगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का इजला को मेरिट पर भर्ती यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। न्यू समनाबाद शाकिर रोड पर सीवरेज का निजाम नाकारा हो गया। गटरों का गंदा पानी रोड पर जमा होने से गुजरना भी मुहाल हो गया है। नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। न्यू समनाबाद शाकर रोड पर सीवरेज का निजाम नकारा हो गया। गटरों का गंदा पानी रोड पर जमा होने से गुजरना भी महाल हो गया। नमाजियों को मस्जिद तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। शहरी घरों से बाहर निकल आए। शहरी कहते हैं वासा दफ्तर कई दफा शिकायत की मगर मसला हल नहीं हो रहा। मुतल्लिका दफातर का अमला शिकायत भी नहीं सुन रहा। वासा अमला चक्कर लगाकर वापस चला जाता है, काम नहीं करते। इंतजामिया कोई काम नहीं करती, बहुत गंद पड़ा और नमाजी बहुत नमाज नहीं पढ़ सकते, कपड़े खराब हो जाते हैं। 10 साल से जो है ना ये गटर कभी साफ नहीं हुए। बारिश में तो पानी जो है ना एक जो है ना कह रहे हैं घुटनों तक जो है 2-2 फुट पानी यहाँ जमा होता है। परसों SDO साहब भी आए हैं, उन्होंने कहा जी यार रात को ये सारा ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक पानी जो है ना वैसे के वैसे खड़ा है और कोई कुछ सुनाई नहीं है। सीवेज बंद है तकरीबन पिछले 15 दिनों से। हम बार बार SDO के साथ बस भी गए हैं, बार बार उन्हें कंप्लेन की है, रिक्वेस्ट की है, एज मोहल्ला साहब गए हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ का जो सुपरवाइजर है वो भी हमारी कोई बात नहीं सुनता, वो हम बहुत परेशान है। शहरियों ने सीवरेज सिस्टम दुरुस्त करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुबीन के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। और शहर की ओपन मार्केट्स में गिरा फरोशी की शिकायत पर इंतजामिया मुतहरिक। मुख्तलिफ तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ करते हुए जुर्माने किए और मुतादिद दुकानें सील कर दी। माह सयाम में रोजादारों की सहूलत के लिए जिला इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक है। जिला भर की तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर ने गिरा फरोशों के खिलाफ अपनी अपनी तहसीलों में कार्रवाइयाँ की। AC मॉडल टाउन अब्दुल समीद शेख ने मक्का कॉलोनी में कार्रवाई की। सहूलत बाजार जौहर टाउन और टाउनशिप के दौरे किए और इंतजामात का जायजा लिया। हमारे पास 3 मेन मॉडल बाज़ार हैं। तहसील मॉडल टाउन के अंदर सबसे बड़ा जो हमारा बाज़ार है वो यहाँ पर टाउनशिप के अंदर है, जिसमें 490 हमारे पास परमानेंट स्टॉल्स हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है। मैं खुद भी यहाँ विज़िट करता हूँ, हमारे जो PCMs हैं वो भी यहाँ पे विज़िट कर रहे होते हैं चेक करने के लिए
स्टॉल्स पे क्या सही चीज़ सही रेट पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और जो रेट्स हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं यहाँ पर्टिकुलरली मॉडल बाज़ार में कि डीसी रेट के बाद भी हम लोगों ने जो डिस्काउंट्स दिए हुए हैं वो से अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्वालिटी मौजूद है कि नहीं मौजूद, और स्टॉक्स हैं कि नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कैंट सईदा सुम्बल जावेद ने भट्टा चौक बेदिया रोड पर, जबकि एसीसीटी राय बाबर अली ने गुलशन रावी में गिराफरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। कहा शहरी गिराफरोशों की शिकायत करें, फौरी सुनवाई होगी। रमजानुल मुबारक के महीने में जो डिफरेंट दुकानदार हैं या रेडी साहिबान हैं, उन्होंने आर्टिफिशियली प्राइस हाई किया है। तो जहाँ जहाँ से हमें रिपोर्ट हो रहा है, स्पेशली आज बेदिया रोड पे, यहाँ पे कंटिन्यूस एक मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। और कल परसों जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, हमारे तमाम PCMs जो हैं वो डिफरेंट बाज़ार में मौजूद हैं, और यहाँ पर तकरीबन अभी तक जो टोटल हमारे फिगर्स हैं, हम 20 के करीब दुकानदार जो हैं वो उनको अरेस्ट कर चुके हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब इधर जुर्माना हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी किसी किस्म की वायलेशन नहीं मिली। 5 to 10% जो है गली मोहल्लों में या इससे जो अंदर की तरफ बाज़ार्स हैं वहाँ पे मिलती है, फिर उनको हम फाइन भी करते हैं, उनको हम सील भी करते हैं और उन पे FIRs भी देते हैं। हुकाम का कहना था कि सहूलत बाजारों में 16 बुनियादी अशियाए जरूरिया सरकारी नरखों से भी कम कीमत पर दस्तयाब हैं। ओपन मार्केट्स में भी डिप्टी कमिश्नर रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। रमज़ान में अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लेने के लिए मॉनिटरिंग के साथ कार्रवाइयाँ भी तेज़ हैं। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी डॉक्टर किरण खुर्शीद और DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने काना काछा मंडी का दौरा किया। मंडियों में सब्जियों और फलों की कीमतों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी और DC लाहौर ने मुश्तरका काना काछा मंडी का दौरा किया। दौरान दौरा आलू, प्याज समेत दीगर सब्जियों और फलों की नीलामी के अमल का तफसीली जायजा लिया गया। इसके अलावा बोली के निजाम में शफाफियत, सरकारी नरखों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने बारे अहकामात भी जारी किए गए। DC लाहौर का कहना था कि गुज़श्ता सालों की निस्बत रवा साल शहरियों को तमाम खुर्दनोश अशिया में रिलीफ फराहम किया जा रहा है। जायद कीमतों पर अशिया फरोख्त करने वालों से आरे हाथों से निपटा जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले में हमें ओवरऑल डिक्रीज नजर आई है, जो कि बड़ी खुश आइंद बात है। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी एफर्ट्स हैं। आप देखें ना, एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट रेज हो गया सिर्फ इस काम के लिए, जो कि इसको साइंटिफिकली देखता है, सप्लाई एंड डिमांड को ना सिर्फ देखता है, फिर अकॉर्डिंगली स्टेप्स भी लेता है। ऑन ग्राउंड जो इन्फोर्समेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया। पीरा फोर्स का एक स्पेशल इसमें रोल है बहुत ज़्यादा। हमारे 90 के करीब तो सिर्फ लाहौर में मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि सुबह शाम ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना था कि मुकर्रर करदा सरकारी रेट्स के मुताबिक अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी चेक की जा रही है। सब्जी और फलों समेत अंडे और गोश्त के सरकारी नरखों को यकीनी बनाया जा रहा है। जो डेली रेट निकलते हैं हम इसको मेंटेन भी कर रहे हैं, इसको एनफोर्स भी कर रहे हैं, और जनरली ये रेट जो है विद इन दी पब्लिक रीच है। और पिछले साल से कंपेयर करें तो ये बहुत, हम इस वक्त कंफर्टेबल जोन में हैं। जब हमने पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ मीटिंग की है तो हमारे पास पीछे वाफर मिकदार में सप्लाई मौजूद है। सप्लाई का ऐसा कोई इशू नहीं है, प्रोडक्शन हमारी अच्छी है और ईद तक हम बड़े स्मूथ चलेंगे। रमजानुल मुबारक में दालों, सब्जियों, गोश्त, अंडों और दीगर बुनियादी खुर्दनोश अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए रमजान और सहूलत बाजारों में 10 से 15 रुपए सस्ती अशिया फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समातों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। 3 अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा हाई कोर्ट पेश। जस्टिस तनवीर अहमद शेख का एडिशनल IG से मुकालमा। कहा कानून के मुताबिक काम करें, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो सब जज हैं, वो किसी न किसी को इंसाफ देते हैं, हम सब अल्लाह को जवाब दे हैं। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने साइला सलमा बीबी की 3 अफराद की मुबैना बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। इगवा के मुकदमे में मुलविस मुलजिम की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रजा को मुख्फी की बाजियाबी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। जस्टिस तारिक सलीम ने मुद्दई मुकदमा खुर्शीद बीबी की दरखास्त पर समाअत की। जुआ प्रमोशन ऐप केस, यूट्यूबर डकी भाई और एहलिया अरूप जतोई समेत दीगर के खिलाफ समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने डकी के मुंजमद बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए, यूट्यूब चैनल चलाने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी की मुबैना गैर कानूनी हिरासत से मुतालिक केस की समाअत। RPO गुजरावाला खुरम शहजाद अदालत में पेश हुए और थानों के CCTV कैमरों की खराबी पर वजाहत पेश की। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने तायला शाहिदा परवीन की दरखास्त पर समाअत की। 2 खवातीन की मुबैना अदमबाजियाबी और उनके खिलाफ मुकदमात के अंदराज से मुतालिक केस की समाअत। हाई कोर्ट का DPO गुजरात की रिपोर्ट पर इजहार अदम इत्मीनान आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर दिया। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने साइला खानम बीबी की दरखास्त पर समाअत की। फ्रॉड के मुकदमे में
मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। हाई कोर्ट ने 2 मार्च तक तमाम गवाहों के बयानात और जिरा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मुलजिम अली अमीन की दरखास्त पर समाअत की। 9 किलो हेरोइन रखने के केस का फैसला। एडिशनल सेशन जज शुकेब इमरान कमर ने मुलजिम इरफान को उम्र कैद सुना दी। 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। मुलजिम जुर्माना अदा न कर सके तो उसे मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। मुलजिम के खिलाफ थाना सतो कतला पुलिस ने 2023 में मुकदमा दर्ज किया था। इजरा में दुकानदारों के 20 किलो सोना खुर्द-बुर्द केस में अहम पेशरफ। मॉडल टाउन कचहरी की अदालत ने मुलजिम वसीम अख्तर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया इजलास कोरम पूरा न होने के बायस बुध तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर खजाना और पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजा रहमान का कहना है कि पंजाब में पार्लिमानी 2 साल में तारीखी कानून साजी की गई। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। चीफ व्हिप मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद नुक्ता एतराज पर गुफ्तगू करते हुए बोले, पंजाब असम्बली ने 2 साल में रिकॉर्ड बिल पास करके अवामी फलाह का काम किया है। हुकूमती रुकन क्रिस्टोफर फेल्बोस ने कॉरम की निशानदही की, जिस पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन ने कॉरम पूरा न होने पर 5 मिनट के लिए घंटियां बजाने का हुक्म दिया। जनाब चेयरमैन साहब, 2 साल खत्म हो गए हैं, तीसरे साल का आगाज है। मैं इस मौका पर 144 बिल पास करने पर रिकॉर्ड लेजिस्लेशन 78 साल में आज तक इतनी कानून साजी नहीं हुई। मैं इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, और बिलखसूस स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब को, डिप्टी स्पीकर साहब को, आपको, पूरी टीम को, और बिलखसूस सेक्रेटरी जनरल ऑफिस को, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमने ये रिकॉर्ड लेजिस्लेशन की। पंजाब असम्बली के मीडिया हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना मुज्तबा शुजा रहमान ने कहा कि सूबे ने तरक्की की तरफ जाना हो तो कानून साजी नागुज़ीर हो जाती है। पंजाब हुकूमत में 2 सालों में तारीखी कानून साजी हुई। इस साल में हमारी ओवरऑल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा रही है, गवर्नमेंट की प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा रही है, तो उसी तरह हमारी पार्लियामान की, हमारी सूबाई असम्बली की प्रोग्रेस भी, जो कि असल काम है इस असम्बली का, इस प्रोविंशियल पार्लियामान का काम ये है कि यहाँ पे कानून साजी की जाए। पिछले साल टोटल जो यहाँ पे लेजिस्लेशन हुई वो 28, टोटल बिल्स और अमेंडमेंट्स जो हुई वो 28 थे। इस साल 115 है, जो कि बहुत अच्छी हमारी प्रोग्रेस है। ऑपोजिशन इजलास का कॉरम पूरा करने में नाकाम रही, जिस पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने इजलास बरोज बुध सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास ऐवान की कार्रवाई में भरपूर शिरकत को यकीनी बनाने और अपोजिशन के रवैये का मौसर जवाब देने पर इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि हर असम्बली इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बाकायदगी से मुनक्कद किया जाएगा। इजलास में अपोजिशन की नारेबाजी और रवैये के मुताबिक भरपूर जवाब देने का भी फैसला किया गया है। इजलास में अरकान को हिदायत की गई कि हर मेंबर माहाना रिफ्रेशमेंट फंड की मद में 20,000 रुपये चीफ व्हिप को जमा करवाए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मरीम नवाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी को सराहते हुए उन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली मुस्बत किरदार की भी तारीफ की गई। इजलास की सदारत राना मोहम्मद इकबाल खान ने की, जबकि सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शुजा रहमान ने पार्लिमानी कैलेंडर के हवाले से ब्रीफिंग दी। चीफ व्हिप ने अराकीन को ऐवान के आइंदा लाया अमल से भी आगाह किया। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास सदारत वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने की। मुख्तलिफ आसामियों पर जारी भर्ती के अमल का जायजा लिया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी दौरा किया। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक और चेयरमैन बोर्ड डायरेक्टर फरकत आलमगीर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ज़ेर तामीर जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तफसीली दौरा भी किया। इजलास में मुख्तलिफ असामियों पर जारी भर्ती के अमल का तफसीली जायजा लिया गया। इदारे के डीन और मेडिकल डायरेक्टर के लिए स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात की मंजूरी दी गई। इजलास में सिक्योरिटी और जेनिटोरियल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में आईडेप को प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की गई। सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल ICU 2 का इफ्तिताह कर दिया गया। MNA सदर मुस्लिम लीग नून सैफुल मुल्क खोकर और सूबाई वजीर फैसल खोकर ने इफ्तिताह किया। सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल ICU 2 का इफ्तिताह कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोकर और सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोकर ने इफ्तिताह किया।
MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इमरान अली जैदी, प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जोहरा खानम समेत अस्पताल अमला मौका पर मौजूद था। सैफुल मुलूक खोखर ने कहा, वजीर आला मरियम नवाज ने ड्यूटी लगाई है कि देखा जाए कहीं कोई सेहत का मसला ना हो। मरीजों को अदवायात की मुकम्मल सप्लाई मिल रही है। हर हॉस्पिटल के अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर इलाज हो रहा है, सर्विस दी जा रही है। और अभी आपने देखा 6 हॉस्पिटल जो एमरजेंसी है उसका इफ्ताह किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इलाज हो रहा है, इंतजामिया ठीक काम कर रही है। सूबाई वजीर खेल फैसल खोखर ने कहा, ICU में 6 बेड शामिल होने से मरीजों की मुश्किल हल हो जाएगी। इन अस्पतालों में जब आते थे तो बदबू नहीं खत्म होती थी। इक्विपमेंट तो दूर की बात है, इलाज तो दूर की बात है, मेडिसिन तो दूर की बात है। मैं कोई सेहत का वजीर नहीं हूँ और मलिक सैफ साहब के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। मकसद क्या है, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हर MPA, हर MNA, हर वजीर वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एवरीथिंग, कि उन हर चीज़ पे नज़र रखें। हम इधर आए हैं, ये एक छोटी सी इनॉग्रेशन नहीं है। 6 बेड्स जब वेंटिलेटर्स ऐड होते हैं, इसका मतलब है कई जानों का अल्हम्दुलिल्लाह हम जाने बचा सकते हैं। नए ICU में 6 बेड और वेंटिलेटर्स शामिल कर दिए गए। MS ने नए ICU बारे बताया। तो सिर्फ मेडिकल ICU अब हमारा इंशाल्लाह 14 बेडेड होगा, जिसमें सब के साथ वेंटिलेटर अटैच्ड हैं। ये दरीना हमारी एक ख्वाहिश थी, इंतज़ामिया की भी हम कोशिशें थी कि किसी तरह हम वेंटिलेटर्स की और बेड स्ट्रेंथ की ICU की ख़ास तौर पर इजाफा करें। सर्जिकल ICU इसके अलावा है, पीड्स ICU इसके अलावा है, न्यूरो सर्जरी ICU इसके अलावा है। ओवरऑल जो हमारे ICU के बेड्स हैं मुख्तलिफ शोबों के, वो अच्छी खासी तादाद में हैं। गवर्नमेंट ने हमें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। अस्पताल में हर शोबे का अपना अलग ICU है, मगर मेडिकल के नए ICU से मरीजों को सहूलियात मैसर आएंगी। कैमरामैन अदनान के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। फैसल में रमजान मुबारक क्रिकेट लीग के मैचेस जारी। लाहौर मोहम्मदन ने ईगल्स को 9 विकेटों से शिकस्त दी। टाउनशिप वाइट्स ग्राउंड में जारी टूर्नामेंट का मैच लाहौर मोहम्मदन और ईगल्स के माबैन खेला गया। ईगल्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 149 रन बनाए। उनकी जानिब से कमर शाह ने 37 और फयाज अहमद ने 36 रन की इनिंग्स खेली। लाहौर मोहम्मदन की जानिब से आसिफ यूनुस ने 4 और आबिद अली ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में लाहौर मोहम्मदन ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मॉडल टाउन अलवासे वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से साफियों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अलवासे वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से साफियों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ लम्हात को मजीद बेहतरीन बना दिया। साफी बरादरी के साथ मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इफ्तार डिनर में शिरकत की। CEO अलवासे फाउंडेशन मोहम्मद बिलाल, DG पैमरा आयशा मंजूर वट्टू ने भी शिरकत की। अलवासे ट्रस्ट की तरफ से इफ्तार की मुझे दावत दी गई थी। यतीम बच्चों की कफालत करते हैं ये, और यहाँ पर आकर मैंने देखा कि किस कदर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं यहाँ पर। वैसे भी रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और हमें अपना जो वक्त है, रोज़े के औकात हैं ख़ास तौर पर, वो ऐसे ही नेक कामों में सर्व करने चाहिए। अली अहमद ढिल्लू, मोहम्मद इलियास, सराना वही, सैयद बदर सईद, शाहिद नजीर ने शिरकत की। साबिक डायरेक्टर चीफ कंप्लेंट सेल, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट शाहिद कादिर ने खुसूसी शिरकत की। शाहिद कादिर का कहना था कि यतीम बच्चों की कफालत एक बहुत बड़ी नेकी है। ये अलवासे तंजीम है जिन्होंने आर्फन बच्चों को यहाँ पे पाल रहे हैं, उन्हें एक्टिविटी करवा रहे हैं, उन्हें तालीम दिलवा रहे हैं और उन्हें हर किस्म की सहूलत उन्होंने दे रखी है। जी तारिक खान एडवोकेट हैं, बार के सदर पहले रहे थे, और बिलाल साहब, उन्होंने इस तंजीम को बहुत उठा लिया और आज सारे साफ़ियों को हमने बुलाया हुआ था, सारे साफ़ियों को इधर इफ्तारी करवाई है और यतीम बच्चों के साथ उनकी तस्वीरें तुरवाई हैं। मोहसिन गुराया, अफजल तालिब, इसार राना, जाहिद आबिद, तर्जुमान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर अब्दुल हनान भी शरीक हुए। कैमरामैन वसीम के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।